ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਛ ਹਾਉ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲੇਹ, ਸਧਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਭੈ। ਮਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ, ਪੁਨ ਬੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ। ਹਰ ਜਾਪ ਨ ਛਾਡਉ ਏਕ ਘਰੀ, ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ। ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹਿ ਧਰੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ। ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹਿ ਧਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਤੁਕੇ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ, ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ, ਏਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਈ, ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ, ਏਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਈ, ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਛਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਭਾਈ, ਜਿਨ ਏਕੰਕਾਰ ਆਧਾਰ। ਸੋਈ ਸੱਚ ਅਰਾਧਣਾ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਜਾਣ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਪਚ ਮੁਏ ਭਾਈ, ਗਣਤ ਨ ਜਾਏ ਗਣੀ। ਵਿਣ ਸੱਚ ਸੋਚ ਨਾ ਪਾਈਏ ਭਾਈ, ਸਾਚਾ ਅਗਮ ਧਣੀ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਚੁਕਈ ਭਾਈ, ਝੂਠੀ ਧੁਨੀ ਮਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰਦਾ ਭਾਈ, ਦੇ ਨਾਵੈ ਏਕ ਕਣੀ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤ ਸੋਧਿਆ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰ ਥਾਕਿਆ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਪਾਏ।
ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਭਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੇ ਸੋਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕੋਟ ਮਧੇ ਜਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਚ ਨਾਮ ਭਾਈ, ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਕੋਟ ਮਧੇ ਜਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਚ ਨਾਮ ਭਾਈ, ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੋਏ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਰਮਤਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧਾਰਣੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਕਟ ਕਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਚਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਅ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਹਾਰੇ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਚਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਨ 'ਚ ਟਿਕਦੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਛ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮੋਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਡਸਟ ਮਿੱਟੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਲੋਕ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਧੋ ਲਓ ਭਾਈ। ਤਨ ਤੇ ਉਂਝ ਸੱਚਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਾ ਤਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਵਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੱਲ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜੋ ਸੋਈ ਸੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗ੍ਰਹਿ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖਿਲਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾਨੇ ਦੋਹਤੇ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਡ ਵੀ ਲੜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ, ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਜੋ ਭਾਵਪੂਰਤ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਦਿਆਨੇ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਛਲੇ 25-30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੋਕ, ਕਈ ਤਪ ਸਾਧਨਾ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਸਾਧਨਾ, ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਧਨਾ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ
निश्चित मंत्र नूं पढ़िया जाता है, तद जाके लोगों की साधना सफल होती है। साढ़े बहुत सारे आले दुआले लोग साधनावां करते हैं, कामयाबियां क्यों नहीं? क्योंकि ना तो समा निश्चित है, तो ना उन्होंने कोई थां निश्चित है, तो ना ही भाई निश्चित ढंग नाल मंत्र का जाप करते हैं। अपनी अपनी मर्जी हर कोई करी जाता है। खैर, महाराज कहते ने आराधना करना, तो आराधना वास्ते समय अते थां की पाबंदी छुट जाती है। आराधना वास्ते चेता रखना, ना थां की पाबंदी होंदी है, तो ना समय की पाबंदी होंदी है। कोई निश्चित थां नहीं, कोई निश्चित समा नहीं, पर एक निश्चित विचार जरूर है। एक निश्चित विचार, उन्होंने ਅਸੀਂ निश्चित मंत्र भी कह सकते हैं, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਗਾਈਏ ਕੀ ਗਾਓਗੇ? ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਤੁਕ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਤੇ ਗਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ का होना चाहिए। वो जो कुछ भी शब्द तुक मंत्र गा रहे हो, वो गुरु का होना चाहिए, क्योंकि गुरु का मंत्र, गुरु का वचन, उहदे विच गुरु का ताकत शामिल होती है। गुरु के संस्कार, गुरु के भाव, गुरु का ओरा उत्थे है, तो सानू वो अपनी शामिल खिच पैदा करता है, तो अपनी शामूलियत कर लेता है। आराधना विषय इसे करके हर वेले हो सकती। सानू तो हुक्म है, दिन राती आराधो प्यारो, अपने प्यारे की आराधना दिन रात करया करो। तो उस प्यारे की आराधना किस रूप च करनी है? सच है, वो आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक होसी भी सच है। ये साडी आराधना का बेस है। उहदे वास्ते समय की पाबंदी नहीं, थां की पाबंदी नहीं, ਸਾਹਿਤਕ शब्द है, दार्शनिक देश अते काल, वो देश अते काल तो मुक्त है। तो जे उहदे नाल जदों असीं जुड़दे हां तो वो देश ते काल तो मुक्त कर दिंदा है। इसे नूं मुक्ति कहिंदे। होर किसी थां ते विशेष नदी के कंढे बैठ के कुछ जौ के आटे के लड्डू बना के पानी च रुड़न दे नाल मुक्ति थोड़ा मिल जाती है। मुक्ति है भावनावां दे, जो साडे संस्कारां च विकार ने, जो साडे संस्कारां च विकार बैठे, जो किलबिखरू बैठे ने, उन्हां तो मुक्ति, कलेशां तो मुक्ति, बंधां तो मुक्ति, विकारां तो मुक्ति। तो ये ताज़ी होएगी जदों असीं गुरु नाल जुड़ांगे, क्योंकि गुरु इन्हां चीज़ां तो मुक्त है, निर्मल है। इस करके आराधना की ख्याल करके आराधना करिए। महाराज पंचम पातशाह साहब नूं आपां पुछ लईने, महाराज जदों असीं तुरे फिरदे घर परिवार के कार विहारां विच आ, चलो असीं अपनी शब्दावली सरल कर लेनी कि सिमरन करते रहना चाहिए। साडा सरल सौखा तरीका है भी हर वेले सिमरन करते रहना चाहिए। असां दी सिमरन की भाव है कि वाहिगुरू वाहिगुरू करते रहो। तो चेता रखना, हर वेले तो संभव नहीं होता ना, हर वेले, क्योंकि घर परिवार दी गल्लां भी करनियां ने, परिवार के जरूरी काम भी करने ने, दफ्तरां च व्यापार व्यवहार बहुत सारी गल्लां करनियां होंदियां ने जो जरूरी ने। उदों ख्याल चाहिए, एक चेते का भाव चाहिए, शब्दों का जोड़ नहीं होंदा। उदों कुछ भाव होंदे ने। वो भाव किहड़ा है? भाव होना चाहिए जिस ते सब कुछ होए, जिस ते सदके आ सब कुछ बनया है। आ सारा कुछ जिस ते सदके बनया है, उहदी आराधना। जिवें असीं कह सकते हैं, आ बल्ब जगदे पए ने, आ स्पीकर बोलते ने, पखे चलते ने, AC चलते ने, किते हीटर भी चलते होणगे, होर भी दुनिया भर दी मशीनरी चलदियां ने, किहदे सदके चलदियां ने? ते सियाणिਆਂ ਨੂੰ पता ना भाई तार नूं हथ ना लाओ, बिजली हैगी है, क्योंकि ये मोटरां चलदियां ने, दा मतलब बिजली है। बिजली दिसती कोई नहीं, उहदी आवाज़ भी कोई नहीं गी, पर ये मोटरां पखे चलते ने, दा मतलब बिजली है। तो चेता रखना, असीं फिर कार विहार करते संभल के करते कि बिजली हैगी, करंट हैगा। असीं बोलते हाँ, ये साह लेने ये मोटरां चल रही हैं साडियां, आ साह लै रहे हैं, एक मोटर चल रही है ना, बोल रहे हैं स्पीकर वांग टना टना बोलते हैं, सुनते हैं भी काम करते, का मतलब अंदर जोत हैगी है,
ਤਾਂ ਹੀ बोलते हैं। ये जोत किहदे तो बन के आई है? ये जोत उस करते पुरख तो बन के आई, ये उहदी है। जो कुछ भी बनया उससे तो बनया। ये ख्याल रख के पर ये ख्याल रखते कि भाई ये सारी बनतर करता पुरख वाहिगुरू जी की है, तो असीं करता पुरख वाहिगुरू जी दे ही बनाए हुए हाँ। बस यही ख्याल हिरदे च रखना, जिस दे सदके सब किछ होए। तो पूछया भाई कित्थों पता लगता है ये ख्याल दृढ़ किवें आउंदा है? कहण लगे गुरपूर है जान आया भाई। ये ज्ञान गुरु दिंदे ने। लोकां दे ज्ञान जिहड़े ना वो अलग अलग ने, याद रखना। जिथे गुरता जिन्हों आपां गुरु कला कहने आ, जिथे गुरु कला नहीं वरत रही, ज्ञान तो उन्होंने कोल भी हैगा है, पर उन्हों का ज्ञान अडरा अडरा जे। एक कहता मेरा रब इस कोने च है, दूजा कहता नहीं मेरा रब तो इस कोने च है, तीजा कहता नहीं जी मेरा रब तो इस कोने च है। एक दूजे के विरोधी बन के बैठे ने। असीं पढ़ लेने आ, किसी ते टीका टिप्पणी करने की लोड़ ही नहीं। दखण देश हरीका बासा, पश्चिम अल है मुकामा। एक कहता नहीं जी मेरा रब तो दखण च रहिंदा, दूजा कहंदी नहीं जी मेरा रब तो पश्चिम च रहिंदा, तीजा कहता नहीं जी मेरा रब तो चढ़ते नूं, इस करके मैं सवेरे सवेरे चढ़ते नूं पानी चढ़ा देना, मेरा रब तो इधर बैठा। इस करके लोगों के तो अडरे अडरे ज्ञान हो गए ना। जे दिशावां अलग अलग ने तो रब अलग अलग ने तो ज्ञान भी अलग अलग होएगा। पर गुरु का ज्ञान गुरु कहते ना पाए। दिल में खोज दिल है दिल खोजो। वो भाई रब किसी दिशा का मुथाज नहीं जे। इस भुलेखे च ना रहो कि रब किसी दिशा च बैठा है, वाहिगुरू किसी खास मुकाम ते बैठा है, वो किसी दुध के सागर च होएगा, सतवें पाताल आकाश च बैठा होएगा। ना भाई, वो तेरे दिल में बैठा है। दिल में खोज दिल है दिल खोजो, यही ठौर मुकामा। ये गुरु का ज्ञान है। जे भाई मेरे दिल में है तो तुहाडे दिल में भी है ना। जिहड़ा जपदा है उहदे दिल में भी है, तो चेता रखना जिहड़ा नहीं जपदा उहदे दिल में ही बैठा जी। वो है जोत है उहदी। ये ज्ञान है, जपना ना जपना है। साडा ध्यान हो सकता है, साडी जानकारी हो सकती है, साडी भगती हो सकती है, पर साडे सदके उत्ते कोई फर्क नहीं पैंदा। उहदे होण जां ना होण ते कोई फर्क नहीं जी। साडे वर्गे 10 20 50 मत्था टेकदे ने, कदे वेखिआ गुरु करता वड्डे हो गए? नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा। 10 20 50 बंदे आके सड़कां ते खलो के किसी धर्म के मुकाम ते वट्टे मार देंदे ने, की फर्क पैंदा? इमारत नूं नुकसान पहुँचा सकते हो ना, शीशे भन सकते हो, पर की रब का भी घर भन दोगे? कि अज तक कदे होया कि किसी वट्टा मार के रब का घर भन दिता हो? नहीं। ये साडियां बनतरां ने, साडे बनाए ढांचे ने। आप एक उंदा बना देंदा, दूजा उंदा तोड़ देंदा। ये तो संसार का अटल खेल है। ये गुरु साहब दसते ने कि भाई करता पुरख वाहिगुरू जी नूं किसी भी साडी तुहाडी बनतर बनाई दी मुताजगी नहीं है, बल्कि असीं तुसीं मुहताज हाँ उसकी सारी बनतरां दे। असीं तुसीं मुहताज हाँ, सानू चाहिए क्योंकि असीं हाँ ही बनतर उहदी। इस करके चेता रखना वो सारे तो चा। और ये ज्ञान साडे गुरु दिंदे ने, क्योंकि गुरु सब दे सांझे ने। गुरु दे कोल कोई आके बह जे मना थोड़ा करते हैं। होए अपने आप किसी जाति का, होए अपने आप किसी बरादरी का, होए अपने आप किसी वक्रे धर्म का भी होए, कोई फर्क नहीं पैंदा। गुरु का ज्ञान वो भी लै लैंदा है। अलग अलग धर्मां दे असां देखे, आपने बहुत बारी पढ़िया सुनिया ना। 5 वक्त के 5 नमाजी भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सेवा करते हैं, तो वक्त के पंडित भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सेवा कर लेते। कौन मना करता है? गुरु दशमेश जी के प्यारियां चों ये सारी शामूलीयत प्राप्त कर लेते हैं। वक्त के उदासी भी, वक्त के सन्यासी, वक्त के जोगी भी आके गुरु तो बख्शिशां लै लेंदे ने। गुरु क्योंकि गुरु का ज्ञान तो मींह वर्गा है ना। मींह पैंदा जिहड़ा बाहर जाएगा पिछ जाएगा। इसे कहते कीर्तन है मेघ की बरखा। कीर्तन तो भाई मेघ की बरखा, बदल की बरखा है। अपनी छतरी उतार ते आनंद ले। गल तो सिर्फ इतना को है कि अपने सिर ते जो छतरियां लाई फिरदे हंकार दियां, ये उतार के देख, फिर इस बरसात का आनंद मिलता है। असीं इत्थे आके बह के भी अपने ज्ञान की, अपने हंकार की
सिर ते छतरी लाई फिरदे। इसे करके शायद साडे वडेरियां ने एक विधान स्थापित किया है कि गुरु दरबार दे विच गुरु प्रकरमा हदूद दे विच कोई छतरी ला के नहीं फिरेगा। आपनों है ना वडेरियां दा एक विधान कि दरबार साहब की परिक्रमा सजण ते छतरियां ला के नहीं जा सकते। इत्थे आना तो भाई तुसीं सड़कों तक व्हीकल तक उत तक जो तक जोड़ा है जोड़ा घर हुंदा है उत्थों तक तो छतरियां ला के आ सकते हो, पर जोड़े घर तो अगे छतरियां ला के ना भाई। इत्थे छत्र का मालक केवल इक्को ही है, इत्थे चंवर ते छत्र का मालक साहिब है। पर असीं इत्थे मनदे हां, हाँ दिसदियां छतरियां ते असीं जमा कर आउंदे हां, पर अहंकार दी छतरियां, अपनी छतरियां, मैं दी छतरी, मेरी दी छतरी, सब ने रंग बिरंगियां छतरियां सिर ते चुकिया ने। नतीजन कीर्तन दा बाणी दा आनंद सानू नहीं मिलता, पर करना पैना है। जे बाणी दा आनंद लेना तो अहंकार की छतरी सिर तो उतारनी ही पैनी है। महाराज कह लगे, पंचम पातशाह जिन्हां कज प्रकाश पुरब कह लगे, भाई ये ज्ञान गुरु दिंदा जी। और अपने घर वेखे जिन्हां पुत्रां ने जिन्होंने असीं सत्कार नाल साहिबजादे कहने आ, पिता नूं केवल पिता मन्निया, वो पिता दे इस गुरु ज्ञान तो सखणे रह गए। और साडे को बहुत सारे नाम ने, असीं सत्कार करते उन्हों का। लक्ष्मी दास जी बड़े सियाणे ने, आग्याकार होणगे, चंगे विद्वान पढ़े लिखे होणगे। श्री चंद जी ने बड़ी जप तपस्या की होएगी। दातू जी दासू जी गुरु के साहिबजादियां चों ने। एक बार मोहन जी बड़े वड्डे ने, पर ये अपने पिता नूं पिता के रूप च देखते रह गए, गुरु रूप च नहीं देख पाए। सब तो पहला नाम दा मोहरी पुत सन्मुख होया। सब तो पहला अगर कोई सन्मुख होकर किसी ने मत्था टेकिया तो मोहरी पुत है। धन गुरु अमरदास महाराज जी का बेटा बाबा मोहरी, उन्हें आके सन्मुख होकर जो क्या हमारे सत है, तुसीं कहता तुहाडा बोलिया सत है। मोहरी पुत सन्मुख होया, उन्हें आके रामदास पैरी पाए जी। उन्हें मत्था टेकिया, उन्हें नहीं कहा भी रामदास की उम्र मेरे तो छोटी है, रामदास साढ़े घर का जवाई है, रामदास कौन है कितों नहीं पता, महाराज गुरु है। तो गुरु ने कहता मत्था टेक दे, गुरु ने मत्था टेकता। अगे देखा प्रति चंद महादेव बड़े नाम साढ़े होर भी ने, जिहड़े पिता के पुत्र ने, असीं भी कई ने साहिबजादे ने, लेकिन गुरु के सिख ना बन सके। पिता के पुत्र होने का मान तो पृथ्वी चंद को सदैव काल वास्ते रहेगा ना, पर सिख होने का मन ये मान बाबा सूरजमल जी ने प्राप्त किया अगे जाके। जदों छेवें पातशाह साहब जी ने बख्शिशां वंडियां, श्री कीरतपुर साहब बैठ के तो सूरजमल नूं पुछदा भी तेरे मन की कोई इच्छा भी है, क्योंकि तैनूं घर परिवार मिलिया, गुरगद्दी नहीं मिली, तेरे मन च कोई विचार, कह लगे ख्याल है जे बख्शिश हो जाए, कह लगे कि कहने लगे सिक्खी दान मिल जाए, क्योंकि उन्हें पता सी कि परिवारों चो सिक्खी स्किप हो रही है। बाबा सूरजमल देख रहे सन कि अपने परिवारों चों हौली हौली लोग सिक्खी का पल्ला छड़ रहे हैं। कहने लगे पिता जी बख्शिश कर दो, सिक्खी घर में रह जाए, सिक्खी दान मिल जाए। तो सतगुर पिता हस के कहने फिर कोई नहीं, जे सिक्खी मांग ली तो गुरता भी आएगी। तेरे परिवार में लोग गुरु वांग, अज जो सोढियां नूं गुरु वांग पूजया जाता ना, बाबे सूरजमल के परिवार के ने, बाकी सोढी सब थोड़ा पूजे जाते हैं। बाकी उन्होंने तो मीणे कह के होर परां कह के उन्होंने तो बाईकाट है। दो वड्डे सोढी परिवारों का बाईकाट है, धीरमलियां का यह भी सोढी ने, मीणियां का यह भी सोढी ने, इन्हों का बाईकाट है। सानू अज भी जो पंचां दे पेश होईदा तो की कहते हैं भाई मीणियां का तो धीरमलियां का विसार नहीं करना, इन्होंने रोटी बेटी की सांझ नहीं रखनी। पर दूजे पासे धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के पुत्र बाबा सूरजमल के परिवार के जो गुलाब राय तो श्याम सिंह बाद गुलाब सिंह होए, उन्होंने परिवारों का मान भी है। आनंदपुर विखे उन्होंने गुरु वांग दशमेश पातशाह बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर के आगमन के दरम्यान बड़ा मान सन्मान सिख मंडल च रहा उन्होंने। खैर ये गुरु दसते ने कि असां की करना है। महाराज जे असीं पुछ सकी अज आपां, हे सच्चे पातशाह, जिहड़े जी इत्थे आके भी नाम नहीं जप पाते, मैं मातलोक ते जन्म मिल गया, संगत मिल गई, सब कुछ मिल रहा उन्होंने, सब कुछ मिल के भी जिहड़े नाम तो सखणे रह जाते हैं, उन्होंने बाबत भी कुछ गल होएगी।
कहने लगे हाँ, नाम भी होने पच मुए। बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਪਕੜ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ। ਧੀਰ ਮਲ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਵੇ ਕਹੋ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਲੋਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਪਚ ਮੁਏ, ਮਰ ਗਏ, ਪਚ ਕੇ ਨੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਕਿਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਕਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾ, 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰਸਤਾ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਧੀਰਮਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਚਾਪਲੂਸ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਣਥੰਭੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਆਣੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੈਸੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਤੜਪ ਹੈ ਤੇ ਵਿਲੇ ਕੇ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਦੇ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਪਚ ਮੁਏ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ 2-3 ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਣਤ ਨ ਜਾਏ ਗਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੋਂ ਅਗਣਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤ ਭੁਗਤ ਕੇ ਖੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਣ ਸੱਚ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਪ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
की पल्ले सच है तुहाडे। आ जाप करदे हो कि हिरदे च सच भी हैगा जे, दुनिया पर दे धर्म के नां ते कर्म करदे हो कि जीवन विच सच भी हैगा जे। दुनिया के नां ते धर्म दे असीं आडंबर रचे ने, शायद इसे करके ही पंचम पातशाह नूं पाखंड करार दिंदे ने। जिस मनुख दे हिरदे विच सच नहीं गा ते धर्म के नां ते बहुत सारे कर्म करता है, महाराज कहते पाखंड करता है और इसकी कौडी कीमत नहीं जे पैनी। मैं नहीं कह सकता, मेरे च निताब नहीं गी, पर महाराज कहने कर्म धर्म पाखंड जो दिस है तिन जम जागाती लूट है। महाराज फिर की करिए? कहने लगे दिखावा करने बजाय हिरदे सच रख के निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, और रब की बंदगी करया करो। निर्वाण कीर्तन सरल शब्द कहना, रब की बंदगी करया करो सच रख के। अज कहने विण सच सोच ना पाइए भाई। सोच का मतलब है पवित्रता, रूहानी पवित्रता। भाई जिन्ना चिर तुहाडे हिरदे च सच नहीं जे आउंदा, उन्हां च कोई पवित्रता नहीं जे। पता बड़ा वड्डा बचन मेरा नहीं, महाराज दा। मन मैले सब किछ मैला, तन धोता मन हच्छा ना होए। असीं सवेर का पता नहीं कितने को वधिया साबण ला के नहा धो के बैठे हाँ, पर देखना कि मन ते फर्क पिया। जे मन विच मैल है, मन विच विकार है, ईर्खा निंदा चुगली द्वेष अहंकार हैं, दुनिया भर के विकार ने, तो जिन्ने मर्जी चिट्टे कपड़े पा लो। दशमेश पातशाह सब दा विसाखी बड़ी गहरी है। जो किसी बच्चे ने वधिया साफ सुथरे हत्थां नाल नवा कटोरा लैके जल भर के महाराज ने पेश किया, तो महाराज कहते ना भाई ये जल छकण योग नहीं है। उन्हें कहा महाराज सुच्चा है, बट बर्तन नवा है, भांडा नवा है। महाराज कहते कि मैं भांडे में तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कहा कि जल छकण योग नहीं है। महाराज की गल हो गई? कहने लगे तेरे हाथ सुच्चे नहीं गए। महाराज मैं तो चंगी तरह साबण ना धो के लेके आया, मेरे हाथ तक देखो कितने साफ ने, मैल लगी नहीं, मैं तो कदे मैला काम किया ही नहीं। महाराज कह लगे मैं तो सफाई की गल है, जो तू कह रहा ना ये सफाई है कि मैं वधिया साबण नाल हाथ धो के आया, सफाई है। पर की दस मेरे तो पहला किसी होर नूं भी जल छकाया ही, मेरे तो पहला किसी होर नूं भी पानी कटोरा भर के पेश किया, लै बाबा तू प्यासा होएगा पानी पी ला। कह लगा नहीं, कह लगे इसे करके तो जल सुच्चा नहीं गा, ये तेरे हाथ सुच्चे नहीं गे। असीं सुने अपने वडेरियां तो, हुण तो रिवाज थोड़ा बहुता बदल गए ने, आर्टिफिशियल जी साडी सिक्खी भी एक दिखावटी जी हो गई है। नहीं तो बजुर्ग मत्था टेकण आउंदे, दो थालियां धोंदे हाथ सुच्चे कर लईए, दो कौलियां पानी धो के धरते कहते नहीं सुच्चे हाथ हो जाते हैं। क्योंकि सेवा तो बिना सुचमता नहीं जे मिलनी बाहरले तौर पर। तो महाराज कहते हैं जिन्ना चिर तेरे हिरदे विच सच नहीं आउंदा, उन्ना चिर कोई पवित्रता नहीं मिलनी। बिन सच सोच ना पाइए भाई। फिर कहने लगे चेता रखी साचा आगम धनी। जो सच्चा वाहिगुरु है ना वो आगम है। आगम का मतलब होंदा जिथों तक असीं तुर के पहुँच नहीं सकते, सोच नहीं सकते, जिथों तक देख नहीं सकते, साड़ी शरीरक इंद्रियां दे जिथे पहुँच नहीं है, वो आगम है। जिथे तक मेरी पहुँच नहीं, गम होंदा है जिथे पहुँच हो जाए। जिवें अज दुनिया का कोई कोना आगम नहीं रह गया। कदे सीगा प्रदेश विदेश लोगों लई भी बड़ी दूर है नहीं जा सकते, आगम अज नहीं गा। अज तुसीं धन खर्चती जिथे मर्जी चले जाते हो, तुहानूं टैक्नोलॉजी आउंदी, तुसीं जिथों की मर्जी तस्वीर घर बैठे मंगा लैंदे हो। तुसीं उत्थे जांदे नहीं, उत्थों की लाइव तस्वीर तुसीं अपनी स्क्रीन पर बैठे देखी जाते हो। अज दुनिया धरती का कोई कोना साडे लिए अगम नहीं गा, पर चेतन परमात्मा अज भी अगम है। कि असीं सोच सकते कि मेरी सोच मत बुद्ध इतनी तीव्र हो सकती कि जो परमात्मा के बारे सोच सकी, गुरु नानक के बारे सोच सकी भी हाँ नहीं वो अगामी है, वो तक पहुँच नहीं कर सकते। वो धनी वो वाहिगुरु अगम है, ये हिरदे ख्याल रखना। और उहदे तक अगर पहुँचण की कोई जुगत जे तो वो जे सच। इसे करके साडा इको ही सवाल है, जपजी साहब पढ़ने वाले को पता है, केव सचियारा हुई है।
जे संपूर्ण पावन बाणी दे राही एक चीज़ लभनी होवे तो वो कोई किव सचियारा हुई है, किव कूड़ा टुटा पाल। तो महाराज दसे पल्ले साच सच्चे सचियारा, जिन्हों के पल्ले सच है उही सच्चे ने। हुण ये अपने अपने गिरबान च असीं देख ही सकते हैं कि मेरे पल्ले कितना कुछ सच है, और ये सच हंकार तो रहत होवे, विकार तो रहत होवे, किरदार का सच, व्यवहार का सच। असीं वध तो वध थोड़े बहुते बोलों का सच लई फिरदे हुंदे आ, इन्हां को लई फिरदे कदे कदे मैं देखो मैं सच बोलदा, पर अक्सर असीं सच भी उदों बोलदे आ जदों किसी का नुकसान करना हुंदा है। साडे विच एक शौक रिवाज ही पै गया है कि 30-40 साल पुरानी किसी की गलती का अगर पता होवे तो उदों असीं सच बोलते जदों भरी पंचायत होवे, फिर वो विचारे की 40 साल पुरानी गलती अज जदों बुढ़ापे च बैठा होंदा उदों असीं बेइज्जती करके रखते हैं। फिर असीं तो सच प्रगट किया है जी, करते ना असीं सच प्रगट करते हैं। चेता रखना बोलों का सच की कीमत समझनी होवे। गंगू ने भी तो सच ही बोलिया सी, बोलां करके तो गंगू ने भी सच ही बोलिया सी, पर इस सच नूं लानतां पाउंदे हो। ते दूजे पासे उस काजी ने जिथे पातशाह साहब जी उच्च दे बाणे च ने, उच्च दे पीर दे बाणे च ने, उन्हें तो झूठ ही बोलिया सी ना, पर उस झूठ नूं पूजते हैं। याद रखना ये सच ते झूठ लफ्ज़ों का नहीं है जिहड़ा गुरु नानक जी कह रहे, ये सच ते झूठ हिरदे का है। लफ्ज़ां करके तो मनुख अपने लालच करके सच बोलता है, तो लालच करके झूठ बोलता है। महाराज कहने लगे वो सदी भी है, वो अगम है। नतीजन की है, आवण जान न चुकई भाई झूठे दुनी मणी। ये दुनिया का मान झूठा जी, ये आवण जाना सिर तो नहीं चुकना। महाराज की करिए, गुरमुख कोट उधार दा दे नावै एक कणी। महाराज कहने लगे फिर देख, गुरु दे सिख हो जाओ। गुरु है करोड़ों का उधार करता जे गुरु, गुरु ते करोड़ों का पता नहीं कितने को तारे ने गुरु नानक ने किदां तारते। एक नाम की कणी असी सुखन से पाठ करते पढ़े ना, किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवे। उस एक नाम दे किणके दे सदके पता नहीं कितने को जियां का उधार होया। गुरुदेव कृपा करन, असीं भी बेनती कर सके महाराज कृपा करके किते अपने प्यार की, अपने सच की, अपने नाम की कड़ी मेरे हिरदे च भी आ जाए। मेरा भी उधार ले हो। ये कीर्तन दी धुनां असीं कदे कई बार सुनी होणगियां। शब्द दियां अगलियां दो पौड़ियां आपां कल बैठ के फिर वाचांगे। पंचम पातशाह साहब जी की पावन प्रकाश पुरब ने आप समूह संगतां नूं वधाइयां। माता भानी जी धन गुरु रामदास जी के गृह विखे छोटे पुत्र के रूप में गोविंदवाल साहब की पावन धरती पर साहिब का प्रकाश होए। तो पहली बख्शिशां नाना सतगुरु अमरदास महाराज जी तो प्राप्त हुई। तो दोहिता बाणी का बहुता वर्गी बचन प्राप्त हुए। संध्या के दीवान में आप बैठ के साहिब की ही बचपन दी साखियां के दर्शन करांगे। भुल चुक दी खिमा, आसीस ते प्यार दिंदे फतेह बुलावना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।